Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, without any further ado, let's start our topic. Article 35. Up till Article 34, we have covered all the fundamental rights. So, Article 35 deals with particularly the parliament which are the powers which are exclusive to parliament. So if they are particularly exclusive to parliament, it means state legislatures don't have this power. Understood? So what are these? In 16 clause 3, we have read that residence can be a ground of discrimination in the matter of public employment. So that particular connotation or that particular ground can only be given by parliament and not by state legislature. In the example, we have seen that mulk rule, which is prevalent in Andhra Pradesh and Telangana now. So in that particular case, residence has been defined as a ground by parliament and not by state legislature. इन आर्टिकल 32 क्लॉज 3 हमने क्या पढ़ा था? अगर आपको याद है, आर्टिकल 32 इज़ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. उसके साथ लास्ट में जाते जाते मैंने बताया था कि वन मोर पावर हैज़ बिन गिवन फ्रॉम आर्टिकल 32 टू पार्लियामेंट. व्हाट वाज दैट? इट वाज गिविंग writ jurisdiction powers or issuance of writs power to the institutions apart from Supreme Court. Okay, High Court इसमें कवर होगा या नहीं होगा, because Article 2 to 6 gives power to the High Court for the issuance of writs. So this particular power has been given to only parliament and not to state legislatures. ठीक है, एक बेकार सा है, there is no use of it I think, and examiners will also not frame question upon this. दो आर्टिकल है 17 and 23. The punishments given under 17 and 23 can be only framed by parliament only. ठीक है. So this was next. Absorb this. Article 33 and 34. I have told you that Article 33 gives power to the Parliament to restrict the fundamental right to form union or association to armed forces. So this particular ground or this particular restriction can be only implemented by Parliament and not by state legislature. And Article 34 क्या है ये? Martial law. So in this particular article, whole powers have been entitled to only parliament. Understood? एक फिफ्थ एक जनरल पॉइंट है, all the laws which have been implemented on the soils of India before the enactment of constitution can only be repealed or amended by the parliamentary procedure. ठीक है, स्टेट उनको छू नहीं सकता. The laws which are applicable on the soils of India before the enactment of constitution. So these are all the parliamentary powers which are given by constitution under article 35. और ये देख लेना, स्टेट लेजिस्लेचर्स कोई पावर नहीं है.
क्योंकि जो हमारे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस 1 2 3 2 3 2 and 3 and all of the above. So in that particular statements, any of these particular powers which are exclusive to parliament can be framed. ऐसे sentence frame कर सकते हैं और पूछ सकते हैं which of the following is correct or not. So this is a important part. Absorb this. Forty-fourth Constitutional Amendment Act in after emergency. 75 to 77 was emergency period proclaimed by then President on the advice of Miss Indira Gandhi. And this particular emergency is also called Dhabba in our history of Constitution. ठीक है, और डार्क फेज या डार्क टर्म ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों बाद में जानेंगे, थोड़ा सा भी बता देता हूँ. बिकॉज अर्लियर द नेशनल इमरजेंसी, आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352. सो ओनली 3 times emergency provisions has been implemented. ठीक है, so 3 times national emergency have been proclaimed by president. ये कौन से ईयर थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है? 1962, 1971 and 1975 आई थिंक, बट चेक इट वंस इन गूगल. मेरे को ऐसे ध्यान आ रही है कि 62 में इंडो चाइना वॉर हुआ था. सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी हैव इम्प्लीमेंटेड द एमरजेंसी. एंड इन 65 इंडो पाकिस्तान वॉर हैज़ बिन टेकन प्लेस, बट एक पर्टिकुलर एमरजेंसी एक्सटेंड हो गई थी वहाँ, तो उस टाइम नहीं लगी थी. देन 71 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, है ना. जैसे ये ख़त्म हुआ उसके बाद मैडम इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी लगा दी. ओके, तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड इमरजेंसी थी. डेट इज़ वाई इट इज़ द धब्बा ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक बार देख लेना. तो क्या हुआ था, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 there are 3 grounds given in the constitution that, dear president, if you are satisfied that these 3 particular grounds have been enabled you to proclaim an emergency, then with your satisfaction you can proclaim a national emergency under article 352. So these grounds were so there are some external grounds and internal grounds given. In totality there are only 3. ठीक है, so in internal ground previously this phrase has been instilled in our constitution on grounds of internal disturbance. So okay, I am talking about emergency. Right to property हटा दो थोड़ी देर. So via 42nd Amendment Act 1976 एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी. अगर ये एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी आया है मतलब द लोकसभा हैज़ बिन डिसॉल्व्ड एंड पार्लियामेंट इज़ नॉट वर्किंग. सो ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट होगा ये किससे एफिलिएटेड होगा या बायस्ड होगा? ऑफ कोर्स द रूलिंग पार्टी. सो यू नो इन दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट देयर आर वेरियस कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस हैज़ बिन इंस्टिल्ड. ठीक है, और ये जितने भी ज़्यादातर थे 90% ऑफ देम आर कंट्रोवर्शियल. ओके, सो ये 44
अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने राइट टू प्रॉपर्टी हटाया, इसी एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस चेंज हुए 42nd अमेंडमेंट एक्ट का, बिकॉज एट द एंड ऑफ इमरजेंसी द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी हैज़ बीन चेंज्ड इन द सेंटर। ठीक है, कांग्रेस हट गई थी 77 के इमरजेंसी के बाद एंड अ न्यू रूलिंग पार्टी केम इनटू पावर। सो क्या हुआ था, ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दिस इंटरनल डिस्टर्बेंस क्लॉज हैज बीन चेंज टू आर्म्ड रिबेलियन, और यही अभी हमको याद करना पड़ेगा कि आर्म्ड रिबेलियन इज वन ऑफ द ग्राउंड्स टू प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी। And there are some external grounds. These are external aggression or in the times of war. ठीक है, so these three grounds have been mentioned in the constitution via 44th constitutional amendment act. Internal disturbance phrase has been changed to armed rebellion. ठीक है, ताकि रूल ऑफ लॉ हो और रूल ऑफ पॉलिटिकल पावर पॉलिटिकल पार्टी ना हो। अंडरस्टूड? सो दिस वाज सम ब्रीफ कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आफ्टर इमरजेंसी 1978, 31 और 19 क्लॉज कौन सा था, ई था शायद से, है ना, एक बार चेक करना। सो दीज बोथ आर्टिकल्स विच रिलेट टू राइट टू प्रॉपर्टी हैव बीन एक्सक्लूडेड, ठीक है, फ्रॉम फंडामेंटल राइट सेक्शन एंड हैज बीन मेड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, इसके अलावा एक और चेंज हुआ। नाउ दिस राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन मेड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सो इट मीन्स इट ग्रांट्स यू पावर टू एक्सरसाइज योर दिस पर्टिकुलर राइट टू प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव ओनली। इट मीन्स अगर कोई तो नहीं, जो एग्जीक्यूटिव है, जो रूलिंग पार्टी है, वो कभी भी आपको बिना कंपनसेशन के आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर करे इलीगली या फोर्सफुली विथ पावर, ठीक है, तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड यू विल से दैट योर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वेयर एवर, एंड यू विल से दैट कि डियर कोर्ट, माई राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A हैज़ बीन वायलेटेड and I want due compensation. ठीक है, but now as the right to property has been made a constitutional right and scrapped from the fundamental right section, अब आपको legislature के against कुछ नहीं बोल सकते। It means in a future date if parliament has made any law that particular residences or particular land which is in the periphery of 100 meter from the national highways will be acquired by the government without giving any compensation. So this particular bill has been passed by the parliament, so you cannot go against this particular bill and seek your remedy in the courts, Indian courts. Understood? So it will grant you punitive powers or your remedies against the action of executive and not against the action of legislature. So these two kind of things have been amended via article 44, and this is the brief history of right to property. Now comes to the exceptions to fundamental rights. I have told you in each and every article of the fundamental rights section there are various limitations given for that particular rights. So only article 17 is such kind of a absolute right, and in the rest of the rights some or the other limitations has been given.
So in exceptions of fundamental right, now these exceptions are apart from that limitations given in that particular right. So what are these? If you see this suffix in any articles in capital letters, it means it have been made via an amendment. Understood? So 31A saves 5 categories of bill or laws, which include like agriculture reform, laws related to industry and commerce. So these kind of particular laws which are useful or important to implement at the time of independence of India, so as to develop India on a socialistic principles. So you know these particular kind of laws will violate, of course violate fundamental rights one or more, है ना, जैसे 14 and 19 है. So if we want to develop India on a socialistic pattern, so these rights, particular fundamental rights, are obstructing the way of developing India. So Parliament has enacted this and amended this article 31A and gives a immunity to 5 categories of laws, which are agriculture, land related, and industry and commerce related. We don't have to go in depth. 31B is important when, and it deals with 9 schedule. ठीक है, अभी इतना ही याद करो 9 schedule में है. Once we complete fundamental rights, I will give you a brief introduction to what are parts, schedules and some articles. ठीक है, articles हम पढ़ ही रहे हैं. So this particular 9th schedule has been added to the constitution via, I think, first constitutional amendment act of 1951. ठीक है. Now what is the speciality of this 9th schedule? So Parliament has in mind that we have to overpower judiciary. We have to overpower judiciary to such an extent that judiciary can't scrap our laws, the laws made by us Parliament. ठीक है. तो Parliament ने क्या किया? A law has been enacted and this 9th schedule has been instilled in our constitution. The articles in future date, the articles or the laws which are legislated by Parliament and put under this 9th schedule are free from judicial review itself. Understood? It means the list of laws which are under 9th schedule, judiciary will not go into the fairity of laws, whether they are violating your one or more fundamental rights or not. ठीक है. A complete blanket immunity has been given by Parliament to its own laws. ठीक है. तो क्या होगा? Of course, everyone will file petition in Supreme Court that how can Parliament pass such a legislation. So in I.R. Coelho case 2007, Supreme Court has reiterated that you can't provide, dear Parliament, you can't provide such a blanket immunity to the whole of a 9th schedule. आपकी मर्जी, आपकी डिस्क्रेशन से सारे काम नहीं हो सकते ऐसे. ठीक है. ये तो रूल ऑफ लॉ ही नहीं रहा, है ना, रूल ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हो गया ये तो. सो SC हैज़ गिवन दिस जजमेंट, पर ये ऐसे तो मानने वाले हैं नहीं कि बस सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी इतनी बड़ी और हम मान जाते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जस्टिफाई किया? यू कांट प्रोवाइड अ ब्लैंकेट इम्यूनिटी टू द 9th schedule बिकॉज it is violating the principle of judicial review, and the principle of judicial review it's itself a part of basic structure doctrine. I think I have told you what is basic structure doctrine. In Keshavanand Bharati case of 1973,
the judiciary has interpreted the constitution so that a particular doctrine has been invoked by Indian judiciary which is called basic structure doctrine. अभी हम उसके ऊपर पूरा खुल के आएंगे, अभी टेंशन मत लो. तो in this particular Keshwanand Bharti case of 1973, the judiciary has given this basic structure doctrine, and basic structure जैसे ही इंग्लिश जो मीनिंग है वही चीज़ है कि अगर एक बिल्डिंग है उसमें स्टील, कंक्रीट एंड पोल्स लगे हैं तो यू कांट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देम. ठीक है, आप सीमेंट उतार दो तो भी चल जाएगा थोड़ा सा, आप पेंट उतार दो बिल्डिंग का फिर भी हम मान लेंगे, बट यू कांट डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो दिस वाज केशवानंद भारती केस. अभी आएंगे इसके ऊपर. So Supreme Court has defended its stance by giving that judicial review is itself part of basic structure doctrine. So उसके बाद क्या हुआ कि 9th schedule में अब जो भी laws बनते हैं and if parliament has put them into the ambit of 9th schedule, judiciary has the power to check the verity of them. ठीक है, this was 31B, and the next and last is 31C. So in 31C, you know, in part 3 of our constitution it deals with fundamental rights section, and in part 4 of our constitution we have directive principle of state policy. I have told you this in number of times. So there was clash in between two parts. ठीक है, तो इसके भी हिस्ट्री हम जानेंगे एट द टाइम वी आर स्टडिंग डीपीएसपी. बट छोटा सा चीज़ें जान लो, किसी डीपीएसपी आर फॉर द सोसाइटल डेवलपमेंट. ठीक है, एंड दिस फंडामेंटल राइट्स आर कॉजिंग सम हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट. क्यों? बिकॉज दीज फंडामेंटल राइट्स आर पुटिंग द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव. ठीक है, सो इन अ पर्टिकुलर केस judiciary has upheld that okay, at every time if there is a clash between DPSP and fundamental rights, if there is no option, judiciary will have to prioritize fundamental rights over DPSP. ठीक है, हमेशा जुडिशरी चुनेगी फंडामेंटल राइट्स को ओवर DPSP इफ देयर इज नो अदर ऑप्शन. बट टू पर्टिकुलर DPSPs which are 39B and 39C, these are not written in capitals, that is why it is the subparts of 39, not an amendment to 39. So 39B and 39C, these two subparts of 39 will always precede article 14 and 19. ठीक है, तो बस ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज इन एनी केस फंडामेंटल राइट्स will be prioritized over DPSP. So this is nothing but 31C. So these were exceptions of fundamental right, and now we will proceed to the limitation or criticism of fundamental rights.
So one of a great personality, I think one of the member of Constituent Assembly itself has said that this particular part 3 of our constitution should be renamed to limitation to fundamental rights. अभी क्या है फंडामेंटल राइट्स, और उसने पर्टिकुलर महाशय ने ये बोला कि इट शुड बी रिनेम्ड टू लिमिटेशन टू फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज इतने प्रोविजंस ही आपने घुसेड़ दिए. देयर इज ओनली वन एब्सोल्यूट आर्टिकल, आर्टिकल 17, एंड रेस्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स हैव सम लिमिटेशंस ऑन देम, है ना. हमने देखा था आर्टिकल 19 में क्या थी, डिफेमेशन, अगेंस्ट डिसेंसी, पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, इंटरनेशनल रिलेशंस बचाना, ये सब थी ना, आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में जाके. सो इन ईच एंड एवरी आर्टिकल देयर इज सम लिमिटेशंस गिवन. तो पहली तो क्रिटिसिज्म यही होगी. Many of the provisions are vaguely worded. Example, public order. Who will give the definition of this public order? I have told you minority has been written in constitution but hasn't defined it. कौन डिफाइन करेगा? अपने हिसाब से कुछ भी सब्जेक्टिव मीनिंग हो सकता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैजंट ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड सच वर्ड्स. सो दीज आर सम वेगली वर्डेड भी है ना. In the case of violation of your fundamental rights, one or more, so you have to approach Supreme Court. अब सुप्रीम कोर्ट की कुछ फीस होती भी है. चलो मान लो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी मना कर दी, यू हैव गिवन फ्री परमिशन टू फाइट योर केस इन सुप्रीम कोर्ट, बट यू डोंट हैव, आपकी तरह सारे ये लक्ष्मीकांत का कोर्स नहीं देख रहे. आपको पता है जनरल पब्लिक में बस दे हैव टू अर्न अ लिविंग एंड गिव अ प्रॉपर लाइफ टू देयर फैमिली, है ना. उनको कुछ लॉज वॉज से मतलब नहीं है. सो आपको तो लॉ पता नहीं है, सो यू हैव टू हायर वन पर्सन हु नोज लॉ वेरी वेल, है ना. तो वो कौन होता है? लॉयर. सो यू हैव टू हायर योर लॉयर, और आपको लॉयर की फीसिस पता है कितनी चलती है, और कोर्ट केसेस का टाइम पीरियड कितना होता है, 20-20 साल, 30-30 साल. सो इट इज़ काइंड ऑफ वेरी एक्सपेंसिव रेमेडी, है ना. फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है, तो आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, इतना दूर जाना पड़ेगा. कहाँ? दिल्ली में. A person living in Northeast India or in South India has to go to Supreme Court. तो अभी सुप्रीम कोर्ट बार बार लताड़ भी लगा था कि भाई 226 को यूज़ करो, उधर हाई कोर्ट पे जाओ, पहले 32 लेके मेरे पास क्यों आ रहे हो सीधा, है ना. सो दीज आर सम क्रिटिसिजम्स. These are some other criticisms which are very factual. We have studied right to property. So आपको क्या पता चलता है? What lesson do we acquire from here? That there is no permanency to fundamental rights. और इसी से हमें क्या पता चलता है कि fundamental rights have been amended. 44th में अमेंड की ना कि right to property have been scrapped. तो इससे हमें क्या पता चलता है? Everything, anything which has been amended by parliament is not part of our basic structure. और यही पर्टिकुलर चीज़ इस बार के प्रीलिम 2020 में आई थी इन वन ऑफ द स्टेटमेंट, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. पर ये एकदम डायरेक्ट नहीं आई थी. ये पता कैसे आई थी? बहुत कुछ लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिफाइंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट्स, देन हारमोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स, देन रूल ऑफ लॉ, then some other things. ठीक है. तो here two things are wrong. Supreme Court has interpreted constitution in such a way that Supreme Court has defined basic structure doctrine and constitution hasn't defined basic structure doctrine. तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या होता है. सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंटरप्रेटेड दिस डॉक्ट्राइन.
Second is the moment you will see the word fundamental rights in the basic structure doctrine, आप वहीं उसको बहुत बड़ा सा क्रॉस मार सकते हो आराम से. तो इन दोनों में से इफ़ यू हैव नोन वन ऑफ द थिंग्स, सो दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज वेरी इजी. सस्पेंशन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, मैंने आपको बताया ओनली 2 आर्टिकल्स, 2 फंडामेंटल राइट्स 20 एंड 21 can't be suspended in any case, or rest of the rights can be suspended during national emergency. And this one I have told you the criticism, preventive detention law. Such a law hasn't been prescribed in any of the written constitution of this modern world, but Indian constitution is such a constitution that has instilled in itself the preventive detention laws. So these are all the criticisms of our fundamental right section. So I have told you there are some other rights which are not the part of part 3 और fundamental right section of our constitution. एक तो आप खुद ही बता दो, अभी अभी पढ़ा है, बताओ. 300 ए क्या है, अब खुद ही बताना. ये बोल रहा है नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड बाई गवर्नमेंट except in the case of law. It means the parliament or the state legislature have to legislate a law demanding the particular tax to be applied on the soils of India, and then onwards you can collect that particular tax. कोई भी ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते. And third is your business, trade and intercourse between the states inside the territory of India should be free. अगर आपने कोई सामान बनाया है, अगर आप बिजनेस करते हो, आपने कोई सामान बनाया है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, आपको उसको बेचना है बिकॉज योर कस्टमर बेस इज इन हरियाणा, तो आपको उधर जाके हरियाणा में बेचना है. तो आप क्या करोगे, एक ट्रक लोगे और उसको हरियाणा तक भेजोगे. सो इन दीज पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस दैट इज़ फ्री. ठीक है, आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे कि आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्रॉस करना है. डेट आर सम अदर थिंग्स, ऑक्ट्रॉय और वो सब जो होता है, बट कि आप पर्टिकुलर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे. मैंने तो ये बिजनेस वाले का एग्जांपल दिया है. अगर हम खुद अपनी कार में बैठ के वी हैव टू गो टू पंजाब और मध्य प्रदेश, तो क्या होगा, वी ओनली हैव टू गिव द टोल्स, और वो भी नहीं देना. आपको पता है यू कैन अवॉइड गिविंग टोल्स, पर कैसे कि टोल रोड पे चल रहे हो तो अवॉइड करोगे, नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ऐसे कोई भी रोड पे आप टोल नहीं लगा सकते जिसका अल्टरनेटिव रूट नहीं प्रेजेंट है. सुप्रीम कोर्ट हैज टोल्ड इन अ जजमेंट दैट गवर्नमेंट कांट पुट अ टोल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द रोड विच डजंट हैव एनी अल्टरनेट रोड. अगर आपको ए से बी तक जाना है, दिस इज अ टोल रोड एंड दिस इज द कच्चा रास्ता, नॉट कच्चा बट सेमी परमानेंट रोड. सो अगर ये है तो यहाँ टोल लग सकता है. अगर एक ही रोड है, इफ अ सिंगल रोड इज ज्वाइनिंग ए एंड बी, देन नो टोल कैन बी अप्लाइड हेयर. क्यों, क्योंकि इस राइट के अगेंस्ट हो जाएगा ना कि फ्री है. समझ रहे. So this was trade and intercourse inside the India, inside the territory of India is free. So now a interesting and last part of our fundamental rights section.
These three cases we have to remember and put our arguments in case the particular question amendability of fundamental rights will come in mains exam. ठीक है. So at the time of independence हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स चल रहे थे बिकॉज अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दिस इंडियन सिटीजन्स holds very large 300 acres and this amount of land and there are some other poorer section of society which are landless. ठीक है. सो हमको ये अनइक्वलिटी कम करनी थी. ठीक है. वी हैव टू डिवाइड दिस लैंड इन अ सोशलिस्टिक मैनर. तो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स करने स्टार्ट किए. तो पब्लिक को क्या लगा कि भाई हमने तो एक गवर्नमेंट अभी अभी चुनी है एंड दीज आर वर्किंग अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट. अंडरस्टूड. तो जैसे ही लैंड रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुई तो जो पर्टिकुलर आर्टिकल था 31 एंड 19E वो वायलेट होना स्टार्ट हो गया कि भाई ऑन वन साइड यू हैव गिवन द राइट टू प्रॉपर्टी इन फंडामेंटल राइट सेक्शन सो इट कांट बी वायलेटेड and on the other hand you are doing agriculture reforms and are violating and not implementing fundamental right in its spirits. है ना. सो शंकरी प्रसाद केस 1951 सुप्रीम कोर्ट में गया. ठीक है. एंड इट चैलेंज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1951. ठीक है. तो फिर इससे क्या हुआ. In this particular judgment, the Supreme Court has told so in this particular Shankari Prasad case 1951 Supreme Court told that Parliament has two powers. ठीक है. कौन कौन सी. Ordinary legislative power and constitutional legislative powers. Any law which has a definition of Article 13 and the Parliament has amended it via ordinary legislative power means simple majority. So that particular law can't violate fundamental rights section. But if the Parliament has amended any provision of the Constitution via constitutional legislative powers, it means special majority. So that particular law will not hold the definition of Article 13. That is definition of law. So the Supreme Court has ruled this particular case on behalf of government of India. Understood. Then comes गोलकनाथ केस 1967. ये गोलकनाथ ब्रदर्स थे. ठीक है. तो इनकी लैंड छिन रही थी आई थिंक इन स्टेट ऑफ पंजाब. तो दिस पर्टिकुलर केस हैज़ बीन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट में इसने क्या बोला. देखो लॉयर्स की ना उस जो लेवल की टॉक होती है वो बहुत ही अलग होती है. वहाँ दो चीज़ चलती है. वहाँ एक तो लॉजिकलिटी चलती है और दूसरी बात जो वर्ड्स लिखे हैं वो चलते हैं. ठीक है. इंटरप्रेट करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है. जो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं लॉयर्स कि सर हमारे हिसाब से ये है, इस आर्टिकल में ये लिखा है तो मतलब ये राइट है मेरे डिफेंडेंट के पास, मेरे प्लेंटिफ के पास ये सब राइट्स हैं. तो ये सब वहाँ आर्ग्यूमेंट्स चलती हैं. ठीक है. तो देखिए कहाँ लॉयर ने गलती निकाली. लॉयर ने ये बोला जो आर्टिकल 368 है उसमें लिखा है आर्टिकल 368 इज द अमेंडिंग आर्टिकल. ठीक है. वाया आर्टिकल 368 हम प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं और उसी को यहाँ बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर. ठीक है. और ये 368 को क्या चाहिए होती है स्पेशल मेजॉरिटी. मैंने शायद से आपको ये सब बता रखा है. सो लॉयर ने क्या बोला
in this particular definition of Article 368, it is written that the powers of Parliament are this and this. ठीक है, तो देखिए कहाँ उसने गलती पकड़ी. उसने बोला, he argued that okay, in this it is written that the powers are given to Parliament, but can the Parliament can exercise these powers? ये तो कहीं नहीं लिखा द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द मैनर टू एक्सरसाइज देम हैज बीन गिवन टू पार्लियामेंट. बस पावर्स ही तो दिए हैं, एक्सरसाइज करने के पावर कौन देगा? ये तो मतलब वही हुआ है कि आप किसी के घर गए, दे हैव इनवाइटेड यू ऑन अ डिनर पार्टी, और वहाँ जाके आपके सामने नूडल्स गर्मा गर्म रख दिए. ओके, डिलीशियस नूडल्स इन फ्रंट ऑफ यू, चाइनीज़ तड़का मार के, अजीनोमोटो डाल के. ठीक है, तो फिर आपने वो खा लिए जब वहाँ ओनर्स प्रेजेंट नहीं थे, वो किचन में लगे हुए थे और खाना बनाने के लिए. वो बाहर आए, सो दे स्टार्ट कंप्लेनिंग दैट व्हाई हैव यू ईटन दिस नूडल्स, ये आपके लिए कोई ना थे. तो भाई हमको अगर आपने डिनर पार्टी में बुलाया है तो मतलब हमारे लिए तो थे ना, और किसके लिए? कोई बिल्ली या चूहे के लिए रखे हुए थे आपने? तो दिस काइंड ऑफ आर्गूमेंट, बट सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सेप्टेड दिस आर्गूमेंट एंड टोल्ड दैट पार्लियामेंट can't amend any part of our constitution. लो भैया, parliament can't amend any part of our constitution including fundamental rights section. So this was nothing but गोलकनाथ केस. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था, आपको याद रखना. एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज केशवानंद भारती केस, जहाँ सारे ऑब्स्ट्रक्शन, लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन का सुलझावट हो गया बाय गिविंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. ठीक है, तो यहाँ क्या किया, इसके बीच में 24th अमेंडमेंट एक्ट पास कर दी, आई थिंक 1971 में. तो दिस 24th अमेंडमेंट एक्ट चेंज द लैंग्वेज ऑफ 368 कि द पावर्स गिवन टू द पार्लियामेंट एंड द मैनर टू एक्सरसाइज देम, ये लिख दिया. तो पार्लियामेंट ने अपने आप को पावर दे दी. सो यही पर्टिकुलर अलॉन्ग विद अदर केसेस ऑल्सो हैज फाइल्ड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. और तब आया केशवानंद भारती केस. केशवानंद साहब जो पंडित थे शायद से केरला में, वो अभी अभी उनका देहांत हुआ है, तो हमको वैसे भी ये याद रखना चाहिए. सो दिस केशवानंद भारती केस 1973 हैज़ अ लैंडमार्क जजमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. और दूसरी सी क्या खास बात है, इन दिस पर्टिकुलर केस द बिगेस्ट जुडिशियल बेंच हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड, आई थिंक 13. ओके, सबसे ज़्यादा जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी एट द टाइम ऑफ केशवानंद भारती केस. ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट टोल्ड दैट ऐसे तो चलेगा नहीं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डायनामिक वन, इट इज़ अ ऑर्गेनिक लॉ, सो इट हैज़ टू चेंज विद टाइम बिकॉज इन नियर फ्यूचर देर आर मैनी स्पेसेस इन विच पार्लियामेंट हैज़ टू लेजिस्लेट एंड मेक अ लॉ. जैसे अभी क्रिप्टो करेंसीज आ गई, उसके ऊपर लॉ बनाना है. मिस्टर एलॉन मस्क इज contemplating to put a city on Mars. तो इन फ्यूचर इंडिया के पास भी ये सब अपॉर्चुनिटी आ सकती है बिकॉज इसरो इज ऑल्सो एडवांसिंग इन स्पेस एरिना, है ना. सो फाउंडिंग फादर्स के दिमाग में भी ये बात थी कि आगे जाके लॉज की इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी. वी हैव टू रिपील सम आर्टिकल्स, वी हैव टू अमेंड सम आर्टिकल्स. तभी उन्होंने ये 368 डाला था. पर लॉयर्स की चालाकी से ये सारे केसेस हो रहे हैं, गोलकनाथ केस जैसे. So in Keshwanand Bharati case, Supreme Court got hold of this crux of the idea in the minds of our founding fathers कि ऐसा नहीं हो सकता. Our founding fathers has such a great wisdom कि उन्होंने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और वो ये बात भूल गए. तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस हैज अपहेल्ड दैट पार्लियामेंट विद इट्स लेजिस्लेटिव पावर्स can amend, repeal any part of our constitution, but exception is basic structure doctrine. The parliament can't touch the basic structure doctrine, the basic essence which our constitution is oozing. Understood? और यही basic structure doctrine की लिस्ट पार्लियामेंट ने बस वर्ड दे दिया. ये लिस्ट बहुत लंबी है और ये भरी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से टाइम टू टाइम. जैसे रूल ऑफ लॉ, उसके बाद
फंडामेंटल राइट्स तो है नहीं, हार्मनी बिटवीन डीपीएसपी एंड दिस जुडिशियल रिव्यू एंड मैनी मोर, इसका भी एक अलग चैप्टर आएगा, तब हम सारे देख लेंगे. So this was the history of amendability of fundamental rights. So what is today's tense? Yes, the parliament can amend any part of our constitution, but it can't violate the basic structure doctrine. Understood? So this was all about fundamental rights. हमने बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में कवर कर लिए हैं. अच्छा, आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ. So our constitution, this constitution book has been segregated in parts and articles, and these schedules are the descriptions of some of the parts. ठीक है, तो जैसे अगर पार्ट्स की बात करें, P1 deals with Union of India and its territory. Part 2 we have learnt citizenship. याद रखना, यूनियन ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरी नहीं है, यूनियन टेरिटरी आई थिंक पार्ट 8 में है. P3 we have studied. Part 4 DPSP. Part 4A we will study in future lectures, fundamental duties. Part 5 is executive, or sorry, not executive, union executive. Part 6 is state. So in this particular manner, there are some other parts also which are important. We will deal with it. So these are all the schedules, 12 schedules, and we have to remember all of them. ठीक है, जैसे मैंने रिमेंबर किए रट के, आप भी कर सकते हो. सो फर्स्ट वन इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सेम एज पार्ट 1. तो इसमें सारे डिस्क्रिप्शन दिए है, हाउ मेनी स्टेट्स वी आर हैविंग, व्हाट आर द बाउंड्रीज, तो ये सब उसमें दी है. इन स्केड्यूल 2 देर इज ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ आई थिंक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस. बट टेक अ लुक ऑफ द oaths given in, sorry, this is I think wrong, ये चेंज हो गया. ये मेरे को इसीलिए ऐसे याद आया, मतलब गलत वे में मत लेना, कि एमपीज जो हैं, मतलब पॉलिटिशियन जो हैं, उनको पहले पैसे चाहिए, उसके बाद वो ओथ लेते हैं. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो है ही ऐसा, तो शायद से इसीलिए ये है, क्योंकि मैंने बहुत पहले इनको रिवाइज किया था. तो स्केड्यूल 2 में अलाउंसेस, प्रेसिडेंट का कितना आएगा, वाइस प्रेसिडेंट का कितना आएगा, नॉट वाइस प्रेसिडेंट बट प्रेसिडेंट का कितना आएगा, और डिफरेंट
फंक्शनरीज का कितना होगा। देन दे विल टेक ओथ आफ्टर टेकिंग मनी। Schedule 4 इज एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। राज्यसभा में आपको पता है अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग सीट्स हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के रेशियो में। तो जब भी जैसे तेलंगाना 2014 में बना तो दिस पर्टिकुलर स्केड्यूल हैज़ बीन अमेंडेड। स्केड्यूल 5 में देर आर सम स्केड्यूल एरियाज। स्केड्यूल एरियाज वो एरियाज होते हैं जो दे आर अलूफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, ठीक है, आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। दे आर very much of the poorer section of the society which hasn't been developed with the pace of our modern society. So these are some scheduled areas declared by president. Schedule 6 deals with tribal areas. ये तो मतलब बहुत ही पिछड़े हुए हैं, इनका अलग ही कल्चर चल रहा है, अलग ही एक तरह से मान लो इनका तो छोटा सा देश है उधर, ठीक है, एक छोटा सा एरिया है, इन्हीं का कल्चर है, इन्हीं का रूल है, इनको पता ही नहीं आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में। दे आर वेरी बैकवर्ड। Schedule 7 has 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा कानून। स्टेट लिस्ट पे स्टेट विल लेजिस्लेट एंड इन कॉन्करेंट लिस्ट बोथ विल लेजिस्लेट, बट इफ देयर इज अ पर्टिकुलर मैटर वेयर पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर हैज लेजिस्लेटेड अ पर्टिकुलर लॉ, सो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द पार्लियामेंट लॉ, ठीक है। और दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ 2020 प्रीलिम्स, तो बहुत ही ईजी था वो। Schedule 8 22 recognized language, इंग्लिश इसमें नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। Schedule 9 I have told you immunity given to the 5 areas. Schedule 10 deals with anti defection law. क्या है ये, इसी के एंटी डिफेक्शन में समझेंगे। 11 and 12, 11 is from 73rd Amendment Act and in Schedule 12 municipalities in 74th Amendment Act, दोनों 1992 में। और ये जो 468 आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स तो हम देख ही रहे हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द सेग्रीगेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर आपको अच्छी लगी ये क्लास, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।